Remember that in today's class we are going to talk about uh, my that is the name of the poem is what? Dover Beach. Written by whom? Written by मैथ्यू अर्नल्ड। आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे मैथ्यू अर्नल्ड की पोयम डोअर बीच को लेकर के बात करेंगे। बिफोर टॉकिंग द पोयम इट इज वेरी essential that we have to talk about the poet, and it's my request that you all have to go with the original lines of the poem, the lines जो पोयम का जो पोएट ने कंपोज किया है। एक एक लाइन को आप समझने की कोशिश करिए, पढ़िए। आई विल explain it later on. But today I will tell you its critical appreciation, the content, formal study of the poem, and what the poet wants to say in the poem. Before taking the poem, it is very essential that first we should know about the poet. The poet Matthew Arnold is a Victorian pessimistic poet. मेरे शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा कि जो पोएट मैथ्यू अर्नोल्ड है वो विक्टोरियन एज के पिसिमिस्टिक पोएट है। व्हाट टाइप ऑफ पोएट ही इज? पिसिमिस्टिक पोएट। और जो पिसिमिस्टिक पोएट होता है वो कौन होता है? निराशावादी कवि। निराशावादी कवि कौन होता है? जो हमेशा ग्लूमी, डार्क एटमॉस्फेयर, डार्क साइड ऑफ लाइफ के ही बारे में ही बात करे, या जहाँ पे केवल निगेटिव ख्याल ही हो, कोई पॉजिटिविटी ना हो, कोई एक तरह से रेज ऑफ होप ना हो, उम्मीद की कोई किरण ना हो, ऐसे पोएट को हम क्या कहते हैं? Such a poet is known as pessimistic poet. Again, I would like to explain when we talk about whom, when we talk about uh, Matthew Arnold, he is a pessimistic poet, and pessimistic poet is one who only sees negativity in life, only finds negative aspect in life, only talks about negative aspect in life. There is no positivity at all. And you will come to know gloomy, डार्क साइड ऑफ लाइफ एक तरह का सिचुएशन ऐसा ही होगा। ही इज नॉट हैप्पी या ही वॉज नॉट हैप्पी विद द सिस्टम, विद द कल्चर, और जो उस समय का सोशल लाइफ है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। सच अ थिंग वी फाइंड। What I want to say, when you come to know, Matthew Arnold was a pessimistic poet, a well-known critic of Victorian era. Already I told you कि Victorian era it covers the period from 1837 to 1901, and in Victorian age there were some leading poets: Tennyson, Matthew Arnold, Robert Browning, and Hardy. Hardy means Thomas Hardy. Already I told you Tennyson was the representative poet. He compromised between science and religion. But when you talk about Browning, in my previous class, I had gone with Browning's My Last Duchess, and I told you that Browning was an optimistic poet. But in today's class, we are talking about whom? We are talking about Matthew Arnold's what? We are talking about Matthew Arnold's Dover Beach. And Matthew Arnold's जो Dover Beach है, this particular poem, Dover Beach, you will come to know what it's a beautiful example. It's a beautiful example of the contemporary situation of Victorian era. Yeah, yeah, you can say a document. It's like a document to know the social, cultural situation of Victorian age. Already I told you that Victorian age was the age of doubt, dispute, distraction. It was the age of the conflict between science and religion. It was an age of what ultimately you will come to know conflict between materialism and spiritualism, and also the age of class struggle, the age of Marxist movement, mass migration of the people from village to city area। इन सब की वजह से जीवन में जो परिवर्तन आता, इन सब की वजह से जो particular changes we find in our life, you will come to know that is highly significant, वह बहुत मायने रखता। और जो प्रेजेंट पोयम है, द प्रेजेंट पोयम इज अ लिरिक। डोवर बीच के अलावा पोएट ने कई पोयम लिखा हुआ है, जिसमें से एक पोयम का नाम है
शेक्सपियर सॉनेट, शेक्सपियर के ऊपर उन्होंने सॉनेट लिखा, दैट्स अ ट्रिब्यूट टू विलियम शेक्सपियर। एक्सेप्ट शेक्सपियर, उन्होंने कुछ और पोयम लिखा, थायरिसिस, he has written Scholar Gypsy, he has written To Marguerite, In Memoriam, या Memorial Verses, not In Memoriam, but Memorial Verses. And In Memoriam is a poem by Tennyson. So when you talk about this one, certain points you have to remember: a pessimistic poet of Victorian age who was a well-known critic as well as poet. And you will come to know a pessimistic poet is one who only finds the negative aspect in life, not satisfied with the situation of his time. He cries, he laments, and just want to bring a change. Yeah, he has a revolutionary spirit or revolutionary thought. He gives value to culture and says that the world in which we are living, it is the world of materialistic life, it is the world of luxurious life. It is such a type of world where the people are only giving importance to what? Where the people are only giving importance to money. Late and soon they have only one desire to earn, just as you will come to know William Wordsworth in his beautiful sonnet, The world is too much with us, he has told to all of us, he has painted. So again, I would like to tell you, when we talk about this poem, especially Matthew Arnold, तो मैथ्यू अर्नोल्ड की पोयम में एक तो एलिजाइक नोट मिलता है। एलिजाइक नोट का मतलब कि दर्द भरे संगीत, जिसे आप कह सकते हैं। दर्द भरे संगीत किससे रिलेटेड है? इट्स अबाउट द नोट ऑफ ह्यूमन मिजरी, जो मानव जीवन के कष्ट है, जो मानव जीवन की अपनी प्रॉब्लम्स है, यह उससे रिलेटेड चीज है। तो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि दिस मैन मीन्स मैथ्यू अर्नोल्ड. Matthew Arnold ultimately tells about human misery, about you will come to know जो स्टेन, पेन, ट्रामा जो विक्टोरियन एज के लोगों का है, उसको लेकर के वो बातें करते हैं। So there are so many things which are highly significant which we must know, yeah, which we should try to know. And what are those aspects? You will come to know कि Arnold as a poet criticizes the contemporary situation. Arnold as a poet is not satisfied with the existing system, especially social जो फैब्रिक था उसको लेकर के वो सेटिस्फाइड नहीं थे। Arnold was a man of culture, Arnold was a man of tradition, Arnold was a man of old values, and Arnold find that there is no goodness, no virtue, no joy, no delight, no pleasure, no happiness, no humanity, no generosity, no curiosity, no kind hearted, no compassion, no pity, no mercy at all. उन्होंने पाया कि विक्टोरियन एज में इन सबके लिए कोई जगह नहीं। देयर वॉज नो रूम फॉर इमोशन, देयर वॉज नो रूम फॉर फीलिंग्स, heart was not important, soul was not important, the people were not talking about the purity of heart or soul. The people were only interested in one thing: materialistic life, luxurious life, spend time in restaurant, hotel, pub culture, all these things we find. Especially he tells कि जो चीजें एरिस्टोक्रेटिक क्लास में कल्चर को लेके बर्बाद की गई, वो मिडिल एज में और लोअर क्लास में भी देखने को मिलती है। He has written a beautiful book, Culture and Anarchy, Essays in Criticism, in which he tells about these things. Even he said that poetry is the criticism of life. उनका ये मानना था कि जो पोइट्री हम लिख रहे हैं, उस पोइट्री में जीवन की आलोचना होनी चाहिए, और जीवन की आलोचना का मकसद यही है कि पोइट्री में देयर शुड बी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, द लाइफ विच यू आर लिविंग एंड द लाइफ you are passing in a particular era, time or period. जिस समय आप जिंदगी गुजार रहे हैं, उस जिंदगी का पोइट्री आईना होना चाहिए। उस पोइट्री में
ये सारी चीजें नजर आनी चाहिए। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, जब हम इन सब चीजों को लेकर के बात करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है। वह पॉइंट ये आता है कि यू विल फाइंड या यू विल कम टू नो कि मोस्ट ऑफ द थिंग जो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, उस ह्यूमन लाइफ में कितना कष्ट है और कष्ट की वजह क्या है, उन सबको भी उन्होंने खूब बखूबी क्या किया है, कंपोज किया है, बताया है, उसको डिपिक्ट किया है। So the present poem is not only the poem, it's ultimately what it's a document to know the condition of Victorian life, to know the condition, especially the social situation, the political situation, and how much the people became materialistic, what the luxurious life they were passing, and why there was no satisfaction, why there was no joy, no pleasure in the life of human beings. These things we find. ये जो पोयम है, यह जिंदगी का आईना है। कौन सी जिंदगी का? उन लोगों की जिंदगी का जो विक्टोरियन एज में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। पोएट ये बताता है कि कितना ज्यादा लोग लग्जरियस और मटेरियलिस्टिक लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। पोएट ये बताता है कि देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ और गुडनेस और वर्च्यू, नो वैल्यू ऑफ गुडनेस और वर्च्यू, ओनली लग्जरियस लाइफ, ओनली मटेरियलिस्टिक लाइफ, only they were giving means living the lives for petty issues, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनके लिए लोग जिंदगी गुजार रहे थे। नो नॉट एट ऑल। So what I want to say, what I want to tell you, when you go with this poem, you find note of human misery, you find pain, you find stain, you find ultimately you can say doubt, dispute, and destruction. You find the breaking of relationship. You find what? You find the materialistic life. You also find that all over the side there was unrest and anxiety. You find कि the people were not ultimately satisfied. The people were not getting joy. The people were not getting pleasure. लोगों को कि में कोई खुशी ही नहीं रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे लोग बहुत परेशान है, लोगों में कहीं किसी तरह का कोई उम्मीद ही नहीं है, कि लोगों में कोई एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह का उनको जीवन जीना नहीं चाहते हैं। खासकर पोयट जैसे उस समय जो मैथ्यू अर्नोल्ड जैसे लोग थे, ओनली सीइंग द कंडीशन, because if there is no importance of ethical values, moral values, मोरालिटी का अगर बात नहीं होगा, ह्यूमैनिटी का बात नहीं होगी, कंपेशन की बात नहीं होगी, मर्सी की बात नहीं होगी, पीटी की बात नहीं होगी, तो लाइफ विल बी व्हाट? लाइफ विल बी लाइक द लाइफ ऑफ अ रोबोट, लाइफ विल बी अ मैकेनिकल लाइफ, लाइफ विल बी अ लाइफ ऑफ जस्ट लाइक अ मशीन, उसका जैसा जिंदगी हो जाएगा। इस चीज को लेकर के पोएट क्या करता? पोएट ने सारी बातें की। तो यू विल कम टू नो कि वह एक एलिजाइक पोएट थे। एलिजाइक पोएट मतलब ही कंपोज्ड एलिजी। और ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि एलिजी इज द टाइप ऑफ पोएम composed on the death of someone or the loss of anything। जो एलिजी पोयम है, या किसी व्यक्ति के मौत पर या किसी वस्तु के खो जाने पर कंपोज की जाती है एलिजी। लेकिन यहाँ पे किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। ब्रेक 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 आपने पढ़ा था, उसमें व्यक्ति की मौत थी, आर्थर हेनरी हैलम। आपने वो कैप्टन माई कैप्टन इंटरमीडिएट में पढ़ा था, उसमें अब्राहम लिंकन को लेकर के बात हुई है। बट हियर यू डोंट फाइंड व्हाट, हियर यू डोंट फाइंड अल्टीमेटली व्हाट, हियर यू डोंट फाइंड दीज थिंग्स। हियर वी फाइंड कि how much the situation is crucial, losing of culture, losing of goodness, losing of morality, losing of virtues, and you will come to know कि उन सब चीजों का असर पोएट और उसकी जिंदगी पर क्या पड़ता है, उसको लेकर के वह बात करता है। तो ये जो पोयम है, ऐसा नहीं कि यह पोएट की जिंदगी से रिलेटेड है, किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड है, बल्कि पोएट क्या करता है कि विक्टोरियन एज का जो लाइफ था वह उन सबको लेकर के बात करता है, और बताता है कि द सिचुएशन वाज वेरी कॉम्प्लेक्स, द सिचुएशन वाज मच क्रूशल।
तो इसको आप क्या कह सकते हैं, इट्स एन एलिजाइक पोएम वेयर यू फाइंड द नोट ऑफ ह्यूमन माइजरी, मानव जीवन से जुड़े हुए जो कष्ट है उसके संगीत यहाँ सुनाई पड़ते हैं। पोयम की जो सिचुएशन है लोकेटेड है सी शो के किनारे, जैसे जो है ब्रेक ब्रेक में सी शो है, जैसे आपका जो है और पोयम में यू विल कम टू नो, एक पोयम यूलिसिस है विक्टोरियन एज का, वहां पे सी शो को लेके बात किया। ऐसे मैथ्यू अर्नोल्ड की पोयम है जिसमें सी शो को लेके बात किया। सी शो को मतलब कि समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे पोयम का सेटिंग है। और द सन इज अबाउट टू सेट, या सूर्य जो है डूबने के कगार पर है या डूब चुका है। पोयट जो है किसी के साथ एक होटल में है और वह जो है इंग्लिश चैनल की बात करता है वहां पर, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। तो यू विल कम टू द इज द इवनिंग टाइम, वो कहता है ही जस्ट आस्क समवन की टू कम एंड वॉच द आउटसाइड ब्यूटी, बिहोल्ड द आउटसाइड ब्यूटी थ्रू विंडो। कमरे के अंदर है और कमरे के अंदर से वह बाहर की खूबसूरती किसी और को भी दिखाता है, जो उसके साथ होटल में शायद वो उसकी बिलव्ड या वाइफ है, उसने मेंशन नहीं किया है। और जब वह बाहर की खूबसूरती को दिखाता है, कहता है कि आज खुला आसमां है, चांद निकला है, खूबसूरत मंजर है, एंड आई नीड योर कंपनी। फिर उसके बाद वो ये चीज बताता है कि द सी इज काम टू नाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर। ये सब एक मंजर है जो एक उसने जो है बहुत खूबसूरत ढंग से, लाइक अ पेंटर ही हैज पेंटेड दिस, लाइक अ पेंटर ही हैज डिपिक्टेड दिस, एक पेंटर की तरह से उसने इसको डिपिक्ट किया, एक पेंटर की तरह से उसने इसको बताया। दिस थिंग्स वी फाइंड। तो यू विल कम टू नो कि जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, जो पूरी की पूरी कंडीशन है, जो एक हालात है, वो ये सब चीजें दिखाते हैं कि रियली में पोएट ने पूरी पोयम को दो हिस्सों में बांटा है। एक हिस्से में थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच है कि टूडेज नाइट द सी इज काम, आज की शाम या आज की रात समुद्र शांत है। जो सी है, सी इज द सिंबल ऑफ लाइफ, जो समुद्र है वह जीवन का प्रतीक है, समुद्र जीवन का प्रतीक है। जिस तरह से समुद्र में हलचलें होती है, टाइड आता है, ज्वार भाटे आते हैं, लहरें उठती है, फिर लहरें खत्म हो जाती है, ऐसे ही जीवन है। लेकिन आज जीवन शांत है क्योंकि आज समुद्र शांत है। और वो कहता है कि लेकिन जो इसके पहले लहरें आई हुई थी, लेकिन इसके पहले जीवन में जो परिवर्तन आया था, उसके घाव, उसके निशान आज भी मौजूद है। और वे वैसे ही मौजूद है जैसे बाढ़ का पानी आए और किनारे पर निशान छोड़ के चला जाए कि यहाँ तक पानी आया हुआ था। ऐसे ही बीते हुए समय में जो घटनाएं घटित हुई है, वे कुछ दर्द भरी निशा छोड़ के गई है, वे कुछ दर्द भरी कहानियां बता रही, in a very beautiful manner, in a very beautiful words, in a very beautiful tone, the poet tells the note of human misery. वो कहता है कि today's night is what? Today's night there is calm, there is warmth, there is tranquility. The sea is calm tonight. Tonight means today's night. और मैंने आपको पहले बता दिया the sea is the symbol of life. लेकिन फिर वो कहता है कि नो, देखो ऐसा लग रहा है कि समुद्र में हलचल फिर शुरू हो गई, लहरें फिर से उठने लगी। ऐसा लगता है कि लहरें अपने साथ समुद्र के खुरदरे छोटे छोटे पत्थरों को ला रही है और फिर वापस ले जा रही। लहरों का उठना, खुरदरे पत्थरों का आना लहरों के साथ, यह बताता है कि जीवन में ऐसा लगता है कि फिर से खुशियां जाने वाली है, जीवन में फिर से दुख की लहरें आने वाली है। और यह दुख की लहरें उन खुरदरे पत्थरों जैसी होगी जिसमें कोई सॉफ्टनेस नहीं होता। तो जो खुरदरा पत्थर है वह एक इमेज है, लहरें एक इमेज है जो जिंदगी की उस हकीकत से रूबरू कराती है जहाँ पे दुख है, जहाँ पे ह्यूमन मिजरी है, जहाँ पे खुशियां नहीं है, जहाँ पे दर्द है,
जहाँ पे लाइफ में एक तरह से ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट है, उन चीजों को लहरें बताता है। फिर वो कहता है कि ऐसा नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ इस तरह की बातें करने वाला, मैं अकेला नहीं हूँ इस तरह की संगीत सुनने वाला। आई एम नॉट एलोन हु हैज हर्ड दिस म्यूजिक। बिफोर मी मेनी पीपल, मेनी राइटर्स, मेनी artists have heard this tone. This tone means this tone of human misery. आज मैं अपने जीवन में समुद्र के किनारे खड़ा होकर इसे महसूस कर रहा हूँ, लेकिन एजियन सी में सोफोक्लिस नाम के जो ड्रामेटिस्ट, ग्रीक के ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने भी कभी इसे सुना और उन्होंने भी मानव जीवन से संबंधित कष्ट को लिखा, जगह दी। तो इसका मतलब ये वो कहना चाहते हैं, जब तक जिंदगी है तब तक कष्ट रहेगा। अपने अपने जमाने में कष्ट की तासीर आप कह सकते हैं, या कष्ट का कलर अलग हो सकता है, लेकिन कष्ट ने इंसान की जिंदगी को कभी नहीं छोड़ा। ड्यूरिंग पैंडेमिक देयर इज ऑल ओवर द साइड देयर इज अ chaotic situation. We found the dead bodies in the river Ganga. We found that some dead bodies have been buried down. No proper wood, lack of wood. We find so many things. How much misery we see, how much misery we find this time. So it's the time where we need to stand for each other. Due to the lack of oxygen की कमी से the people are dying, mismanagement. तो आज का जो पोयम आएगा वो लगभग कुछ इस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के लिखा जाएगा। ऐसे ही उस समय के जमाने को जो हालात थे, उन हालात को, सिचुएशन को देख करके पोयम ने उसको लिखा। फिर पोयम का जो दूसरा हिस्सा है वह उससे बहुत अपील करते हैं और कहते हैं कि हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति फेथफुल होना चाहिए, हम इंसानों को एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। लेकिन विक्टोरियन एज के इंसानों की हालत उन सैनिकों की जैसी है जो युद्ध के मैदान में जाना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग में लगे हुए हैं। वे गहरी नींद में है, अचानक उनको युद्ध का बेल सुनाई पड़ता है, वे जाग जाते हैं और अपनों पर ही अटैक कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं रहता कि वे दुश्मन को मार रहे हैं या दोस्त को मार। तो जो कंक्लूडिंग लाइन है इसमें बहुत ज्यादा अपील है और कहते हैं, ऑल लव लेट अस बी ट्रू टू वन एंड अदर, द वर्ल्ड which seems to lie before us like a land of dream hath really neither joy nor love nor certitude nor help in pain. We are here ignorant armies clash by night. तो कहते हैं कि जिस जीवन में या जिस दुनिया में मैं रह रहा हूँ, यह दुनिया बहुत कलरफुल है, हर वक्त अपना रंग बदलती रहती है, और इस कलरफुल दुनिया में हम हेल्प की, मदद की कोई उम्मीद किसी से नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि यह दुनिया बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंदर से यह केवल दुख ही दुख है, बनावटीपन है। हकीकत यही है कि लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए जगह नहीं। The people became materialistic. People don't have time. People don't have respect. People don't have honor. People don't have pity. People don't have mercy for other people. Such a request, such a thing we find from the side of the poem. And you will come to know it shows the plight condition, it shows the helpless condition. But the poem appeals to Victorian people. We all have to come out from such a type of gruesome life, such a type of chaotic situation. We all have to give up and be ready to help each other. This is why he says that all love let us be true to one another, ना कि to each other. Each other का मतलब एक दूसरे के लिए, one another एक दूसरे से अधिक के लिए। दुनिया में जितने इंसान है जब उनको एड्रेस किया जाएगा तो one another, such a thing we find, reciprocal pronoun. So remember that when we go with these things, when we get these points, you will come to know such a thing we see, such a thing we find. तो अबाउट द पोएम यू विल कम टू नो कि यह विक्टोरियन एज का, विक्टोरियन समाज का एक आईना है, उस समाज की जिंदगी को बताता है।
उस समाज के रहने वाले लोगों की सोच को बताता है। उस समाज के लोग कितना मटेरियलिस्टिक हो चुके थे, उनकी जिंदगी से ह्यूमनिज्म, गुडनेस, वर्च्यू गायब हो चुका था, उसको लेकर के बात करता है। यही पोयम की शान है, यही उसकी ब्यूटी है, यही उसकी जान है, जो मैंने आपसे शेयर किया। और मैंने आपको बता दिया कि मैथ्यू अर्नाल्ड एक तीसरी मिस्टिक हो। आप पोयम की ओरिजिनल लाइंस को पढ़ेंगे तो और इंजॉय करेंगे। अब अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यू कैन आस्क। If you have any query, if you want to ask anything, if you want to say anything, you can ask. No query. ठीक है, now I'm concluding.